welcome back. So in today's lecture we will talk about obviously the tools, ठीक है, but here हम tools में बात करेंगे about what, about the devices, ठीक है. इससे पहले हमने देखा about the biological tools. Now we have to talk about the techniques, ठीक है. हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं tools. We are studying about the tools used in आर डी एन ए, ठीक है. हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, दैट इज टूल्स यूज्ड इन आर डी एन ए, ठीक है. और इसमें हमने पढ़ना था द वेरी फर्स्ट जो हमने पढ़ा दैट इज द बायोलॉजिकल टूल. बायोलॉजिकल टूल्स में सब पढ़ा, दैट इज एंजाइम्स, वेक्टर्स, कॉम्पिटेंट होस्ट, ठीक है. नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द नेक्स्ट टूल दैट इज द टेक्निक्स एंड डिवाइसेस. बेसिकली द डिवाइसेस हम बेसिकली बोलते हैं, दैट इज, ठीक है, या फिर हम क्या बोलते हैं, डिवाइसेस, which is actually used in the RDNA technology, ठीक है. So इसमें there are we say various techniques, ठीक है. There are various techniques to use or to isolate. There are various techniques used to isolate and to characterize the macromolecules, ठीक है. Macromolecules में सब आते हैं. हम बायोटेक्नोलॉजी में ओनली हियर अभी हम स्टडी कर रहे हैं दैट वी आर प्लेइंग विद डीएनए, बट नॉट ओनली डीएनए, आरएनए भी आइसोलेट होता है, ठीक है. आरएनए को भी कभी कभी इनकॉर्पोरेट करते हैं. समटाइम्स वी आइसोलेट प्रोटीन आल्सो, ठीक है. बट so that is why we say that biotechnology is not all about playing with the DNA. द बायोटेक्नोलॉजी में सारे जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है, दैट इज डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन्स है, ठीक है, वो सबके साथ जो है प्रोटीन्स आइसोलेशन, डीएनए आइसोलेशन, आरएनए आइसोलेशन, ये सब भी होता है, ठीक है. ऑल्दो हम सिर्फ और सिर्फ वी आर टॉकिंग अबाउट द डीएनए आइसोलेशन एंड डीएनए लाइक डीएनए, बट द biotechnology is not all about DNA. It's about all macromolecules, ठीक है, which includes the DNA, RNA and protein as well, ठीक है. So basically there are different techniques, ठीक है, which are used to isolate and to we say characterize, ठीक है, to characterize different macromolecules, ठीक है. Why? Because why there is a need to have the different molecule, like different techniques, okay, or why there is a need to perform different techniques, different to have different devices. It is only because each of the macromolecules, they vary in density, okay, they vary in molecular weight. Let's say they vary in molecular weight. Their solubility is actually like they have the like different solubilities, ठीक है. सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं, ठीक है, ऑफ द डिफरेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स, जिसकी वजह से वी यूज सेवरल टेक्निक्स, ठीक है, टू आइसोलेट एंड टू कैरेक्टराइज देम, ठीक है. इवन दे हैव द डिफरेंट सॉल्युबिलिटी, ठीक है. सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैव द डिफरेंट सॉल्युबिलिटी, ठीक है. दे हैव द डिफरेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ठीक है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. So they have different they vary in the molecular weight, they have different absorption of light, they have different solubilities, ठीक है. So all these like जो variations हैं, ठीक है, in each of the macromolecules, because of that we like there are several techniques which are used and they are specifically used for स्पेसिफिक मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है. वो हम देखेंगे कि कौन से पर्टिकुलर मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए कौन सा टेक्निक यूज होता है, ठीक है. बट लेटर ऑन, ठीक है, फर्स्ट विल गो थ्रू द वेरी फर्स्ट टेक्निक विच इज वेरी कॉमन, ठीक है, बहुत ही कॉमन है टू ईच ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स, एंड दैट पर्टिकुलर टेक्निक इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है. सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट व्हाट, gel electrophoresis. Okay, so this particular gel electrophoresis is actually explained by, okay, it is explained by the scientists, proposed and explained by
The scientist Tiselius. Okay, so the scientist name is Tiselius. He proposed and explained the same, that is a electrophoresis, okay, which is actually based on, this particular technique is based on density gradient. ठीक है, डेंसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, ठीक है. एंड see gel electrophoresis, okay, as the name said, gel electrophoresis. So here the gel used is actually, okay, agarose gel. What? Agarose gel. The gel used is the agarose gel, which is actually extracted from seaweed. ठीक है, व्हाट? सीवीड. सो बेसिकली जो जेल यूज होता है दैट इज द एग्रोस जेल, जो कि सीवीड से एक्सट्रैक्ट होता है. इस पर्टिकुलर एग्रोस जेल को, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम मिक्स करते हैं डिस्टिल्ड वाटर में. एग्रोस जेल को मिक्स करते हैं डिस्टिल्ड वाटर में टू मेक अ स्लरी ऑफ इट. ठीक है, टू मेक अ स्लरी ऑफ इट, एंड देन वी पोर दिस पर्टिकुलर स्लरी, ठीक है, दैट मीन्स एग्रोस जेल ऑन टू द, onto the trough. ठीक है, what? trough जिसे, ओके, वन से, on to the trough. ठीक है, trough that means agarose plate पे, agarose plate. trough has an agarose plate. ठीक है, I'll show you everything. ठीक है, do not worry. so agarose जो है, ठीक है, ट्रफ पे, लाइक प्लेट पे उसको पोर कर देते हैं, एंड बिकॉज द एग्रोस जो ये सॉल्यूशन बना, ठीक है, दैट इज एक्चुअली व्हाट, थोड़ा सा सॉलिडिफाइड, ठीक है, टेक्सचर होता है, सॉलिड टेक्सचर होता है, सॉलिडिफाइंग सॉल्यूशन होता है. ठीक है, सो बेसिकली उसको पहले हम क्या करते हैं, पहले हीट करते हैं हॉट ओवन में, और जब वो पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ठीक है, एग्रोस जेल का सॉल्यूशन पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाता है, देन हम उसको क्या करते हैं, देन हम उसको पोर करते हैं ऑन टू द दिस पर्टिकुलर प्लेट, एंड देन उसको हम थोड़े टाइम के लिए क्या करते हैं, वी लीव इट. ठीक है, विल पोर ऑन टू द ट्रफ. ठीक है, विल लीव इट फॉर 15 या 20 मिनट्स. ठीक है, 15 to 20 मिनट्स. ठीक है, फॉर सेटलिंग ऑफ द एग्रोस. ठीक है, सो बेसिकली एग्रोस जो है अबाउट 20 मिनट्स के बाद क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है. ठीक है, सॉलिडिफाइड हो जाता है, जेल लाइक अपीयरेंस है, तो पूरा सॉलिडिफाइड नहीं होगा. ठीक है, जेल लाइक अपीयरेंस. ठीक है, तो हल्का सा क्या रहेगा, लाइक ट्रांसलूसेंट अपीयरेंस सा हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज द हाउ वी प्रिपेयर द जेल. ठीक है, इसमें अगर हम एक्चुअली लाइक लेबोरेटरी की बात करें कि लेबोरेटरी में किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, तो इसमें एग्रोस जेल में ना कुछ बफर्स भी मिलाए जाते हैं. ठीक है, अब बस इतना जान लो कि बफर्स मिलाए जाते हैं, वो क्या क्यों, वो सब बहुत लाइक ऊंचे लेवल की बात है. ठीक है, जो पर्टिकुलरली बायोटेक्नोलॉजी जो परस्यू करते हैं, ठीक है, उनके लिए जरूरी है. अदरवाइज यू जस्ट गेट इट कि आप बस इतना याद रखो कि बफर भी समटाइम्स यूज करते हैं. ठीक है, लाइक एग्रोस जेल में वी ऐड बफर. ठीक है, सो जेल यूज्ड इज व्हाट, द एग्रोस जेल. ठीक है, एंड ऑन द अदर हैंड ये सब हम प्रिपरेशन करते हैं. ठीक है, ऑन द अदर हैंड वी यूज टू आइसोलेट द डीएनए, विच इज अ वेरी, आइसोलेट करेंगे ना तभी तो पता चलेगा, लाइक तभी तो हम डीएनए के साथ लाइक व्हाटएवर जो भी हमें करना है करेंगे. ठीक है, सो ऑन द अदर हैंड, ठीक है, वी आइसोलेट डीएनए. व्हाट? ठीक है, ऑन द अदर हैंड वी आइसोलेट डीएनए. ठीक है, एंड मेक अ लाइक आइसोलेट डीएनए एंड I add restriction enzyme in the suspension. ठीक है, सो बेसिकली हम क्या करें, डीएनए को आइसोलेट कर रहे हैं. ठीक है, I'll insert the clip over here. सो क्या किया, डीएनए को इंसर्ट किया. ठीक है, और उस पर्टिकुलर डीएनए में क्या डाला, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला. ठीक है, और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डालने की वजह जो डीएनए है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रेगमेंट्स में, ऑब्वियसली. ठीक है, नाउ वो फ्रेगमेंट्स में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज वी विल ऐड
चिल्ड इथेनॉल, ठीक है, वी विल ऐड व्हाट, वी विल ऐड चिल्ड इथेनॉल, इट्स इंपॉर्टेंट, विल ऐड चिल्ड इथेनॉल, ठीक है, विल ऐड चिल्ड इथेनॉल, ठीक है, टू द सस्पेंशन to separate DNA, to separate DNA, ठीक है, and like हम to separate DNA, like to the suspension to separate to precipitate DNA and then we separate it, ठीक है, to precipitate DNA, ठीक है, and then separate it by spooling method, what, by spooling मैथड, ठीक है, स्पूलिंग मैथड से हम क्या कर देंगे, स्पूलिंग मैथड से स्पूलिंग मैथड से हम उसको सेपरेट भी कर लेंगे, ठीक है, किसको, डीएनए को, ठीक है। सो सारी चीजें आपको दिख जाएंगी क्लिप में। सो हम चिल्ड इथेनॉल ऐड करते हैं, ठीक है, सस्पेंशन में, ताकि हम अपने डीएनए को क्या कर सके, प्रेसिपिटेट कर सके, प्रेसिपिटेट, ठीक है, सस्पेंशन में से डीएनए को प्रेसिपिटेट कर सके एंड देन उसको सेपरेट कर लेते हैं बाय व्हाट, बाय द स्पूलिंग मैथड, ठीक है। नाउ वी हैव द डीएनए फ्रेगमेंट्स, ठीक है। नाउ जो हमने यहाँ पे इसको लीव किया था, ठीक है, एग्रोस जेल में, ठीक है, वहां पे हम वापस से आते हैं। सो द नेक्स्ट स्टेप इज, so the next step is, actually the step is, well next में हम करेंगे, that is will create wells on the एग्रोस जेल, ठीक है। हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर एग्रोस को ट्रफ पे रखा, that is एग्रोस प्लेट पे रखा, उसको थोड़ी देर के लिए क्या किया हमने, 20 मिनट तक उसको सेटल होने दिया, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट वी विल, ओके, सेटल होने से पहले भी हम उसमें क्या करेंगे, हम उसको कॉम्ब के थ्रू, ठीक है, विल क्रिएट द वेल्स, ठीक है। हम क्या करेंगे बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, पोर द ट्रफ, ठीक है, पोर ऑन टू द ट्रफ, दैट मीन्स एग्रोस प्लेट, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट एंड क्रिएट वेल्स बाय कॉम्ब, ठीक है। अब कॉन्ग एज इन वही वाला कॉम्ब नहीं जो हम डेली यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आरडीएनए के लिए जो कॉम्ब यूज होता है वो दूसरा होता है, ठीक है, वो हम दिखाएंगे आपको, ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे। सो बेसिकली क्या क्रिएट कर रहे हैं, वेल्स क्रिएट कर रहे हैं, फिर उसको छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, क्या होने के लिए, सेट होने के लिए। तो कॉम्स जो है, कॉम्स के थ्रू जो वेल्स है वो क्या हो चुके, क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। सो लेट मी शो यू द, लाइक कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, दिस इज द एग, द ट्रफ, ठीक है, दिस इज द एग्रोस प्लेट, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लेट्स, यहाँ पे इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर एग्रोस है, ठीक है, द एग्रोस जो जेल है वो है इसके ऊपर, ठीक है। अब ये जो एग्रोस जेल है इसके ऊपर क्या क्रिएट किया, वेल्स क्रिएट किया है, करेक्ट। तो यहाँ पे इस तरह से वेल्स क्रिएटेड है, ये दीज आर द वेल्स क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ व्हाट, with the help of combs, ठीक है। नाउ वी विल पोर, ठीक है, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम पोर करेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, द विल पोर, we will pour, ठीक है, the DNA samples, that means DNA samples मतलब what, यहाँ पे जो हमने फ्रेगमेंट्स में मिल गए थे, ठीक है, यहाँ पे सेपरेट कर लिया था स्पूलिंग के थ्रू, ठीक है। तो वो जो हमें DNA सैंपल्स मिले, ठीक है, उसको पोर करेंगे इनटू द वेल्स बाय माइक्रोपिपेट्स, ठीक है, बाय व्हाट, बाय माइक्रो पिपेट्स। तो पिपेट्स की हेल्प से क्या करेंगे, हम पोर कर देंगे, ठीक है। एक पिपेट है इस तरह का रहता है, ठीक है, आपने लैब में देखा होगा। तो पिपेट्स की हेल्प से इस वेल्स पे ऐसे, ठीक है, हम क्या कर देंगे, पोर कर देंगे अपना क्या, अपना सैंपल, ठीक है। एंड देन वी कनेक्टेड टू द स्विच, मेन स्विच, ठीक है,
सप्लाई करंट टू इट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, करंट पास कराएंगे। ठीक है, तो करंट जब पास कराते हैं बेसिकली इसको अटैच कराते हैं हम। ठीक है, लाइक यहाँ पे दो वी से द इलेक्ट्रोड्स वेयर देयर। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स रहते हैं। ठीक है, डिप रहते हैं किसमें, सॉल्यूशन में। ठीक है, द इलेक्ट्रोड्स वेयर डिप इनटू द सॉल्यूशन, तो हियर द इलेक्ट्रोड्स आर देयर। ठीक है, हियर द इलेक्ट्रोड्स आर देयर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड्स है। ठीक है, जो कि क्या है, डिप है सॉल्यूशन में। ठीक है, सॉल्यूशन में डिप है, तो इससे क्या होता है, इससे वायर जाती, इससे इससे जो अराइज होती है वायर, उस वायर को हम कनेक्ट कर देते हैं टू द स्विच। ठीक है, टू द स्विच नहीं, स्विच नहीं, टू द बैटरी, सॉरी बैटरी, इलेक्ट्रोड। ओके, इलेक्ट्रोड, टू द इलेक्ट्रोड। ठीक है, एंड देन वो कनेक्ट होगा फर्दर। ठीक है, सो दीज आर द इलेक्ट्रोड। ठीक है, सो हियर लेट्स से इट्स अ कैथोड। ठीक है, और इस साइड क्या है, द एनोड इज देयर। ठीक है, सो इधर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। ठीक है, पॉजिटिव एंड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। एंड एज वी नो द डीएनए, ठीक है, डीएनए इटसेल्फ सेज डीएनए। ठीक है, एन से नेगेटिव। ठीक है, और क्योंकि नेगेटिव है तो कहाँ जाएगा, नेगेटिव से कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। दैट मीन्स वो कहाँ जाएगा, एनोड की तरफ ट्रैवल करेगा। ठीक है, सो दिस इज अ ट्रिक। ठीक है, सिंपल टू रिमेम्बर। ठीक है, कि ये जो फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है, फ्रेगमेंट्स जो हमने पोर किए ऑफ द लाइक व्हाट वी से ऑफ आवर डिजायर्ड डीएनए। ठीक है, वो उसको हमने जो पोर किया, अब वन से जो कनेक्ट लाइक इस पे जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, तो क्योंकि ये इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है। ठीक है, इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है, ये पर्टिकुलर जेल है, जेल में क्या इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, जिसकी वजह से जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, वो ट्रैवल करेंगे फ्रॉम द कैथोड टू व्हाट, टू द एनोड। दैट मीन्स वो ट्रैवल करेंगे फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टू व्हाट, टू द पॉजिटिव चार्ज। तो वो ट्रैवल करेंगे। ठीक है, सो लेट्स से दे आर ट्रैवलिंग हियर। ठीक है, और उन्होंने ट्रैवल किया यहाँ। ठीक है, ये यहाँ। ठीक है, ऐसे क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कुछ कुछ जो हमारे फ्रेगमेंट्स होंगे वो हमें दिखाई देंगे कहाँ तक, दूर तक। ठीक है, ये क्या करेंगे, फ्रेगमेंट्स क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रो क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, बेस किस पे, डेंसिटी ग्रेडियंट पे। तो ये जो, क्योंकि हमारे डीएनए क्या है, वो फ्रेगमेंटेड है, क्योंकि हमने इनको पहले ट्रीट कर दिया है विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, सो द नाउ आवर डीएनए इज व्हाट, दे आर फ्रेगमेंट्स। ठीक है, सो जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट्स है वो सेपरेट करेंगे। ठीक है, डीएनए सेगमेंट्स। ठीक है, जो सेगमेंट्स हैं ऑफ डीएनए, ठीक है, विल रन। ठीक है, विल रन ऑन द जेल, विल रन। ठीक है, अब रन मतलब एकदम वैसे ही मत सोच लो कि वो दौड़ने लगेंगे। ठीक है, आई विल शो यू। ठीक है, so the segments of the DNA will run on the gel and get separated and get separated. ठीक है, एंड गेट सेपरेट। ठीक है, जिसमें कि जिसमें हम बोलेंगे कि द हेवियर। ठीक है, व्हाट, द हेवियर द फ्रेगमेंट्स। ठीक है, द हेवियर फ्रेगमेंट्स डू नॉट travel, longer। ठीक है, या फिर डू नॉट कवर द लॉन्गर डिस्टेंस। ठीक है, दैट विल बी बेटर वे टू राइट। ठीक है, इन विच वी कैन से द हेवियर फ्रेगमेंट्स डू नॉट ट्रैवल, फिर ट्रैवल आ गया, डू नॉट कवर द लॉन्गेस्ट, या फिर द डू नॉट कवर द लॉन्ग
डिस्टेंस, ठीक है। एंड क्या स्मॉलर पीसेस जो होंगे, स्मॉलर पीसेस विल बी लाइटर, ठीक है। ये हेवियर है या फिर कह लो द लॉन्ग पीसेस, ठीक है, हेवियर या फिर लॉन्ग फ्रेगमेंट्स, ठीक है, हेवियर या फिर लॉन्ग जो फ्रेगमेंट्स होंगे, ठीक है, वो ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करेंगे, बट जो स्मॉलर पीसेस होंगी, ठीक है, दे विल मूव द फास्टेस्ट, ठीक है। दैट मीन्स जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स होंगे वो ज्यादा दूर तक ट्रैवल करेंगे, लेकिन जो बहुत ही हेवी फ्रेगमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, वो ज्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं करेंगे, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब या तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो स्मॉल पीसेस होंगे, दैट मीन्स कि ऑब्वियसली उनकी डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी कम होगी, ठीक है। एक तो स्मॉल फ्रेगमेंट्स होंगे, दैट मीन्स वो क्या होंगे, वो कुछ इस तरह से सिंगल, लाइक क्या होंगे, इस तरह से सिंगल सेगमेंट्स होंगे, ठीक है। और अगर मैंने बोला था लॉन्ग फ्रेगमेंट्स और द हेवियर फ्रेगमेंट्स, तो हेवियर फ्रेगमेंट्स मतलब कि लाइक ये भी कंक्लूजन हो सकता है, ठीक है, कि अगर इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इफेक्ट भी हम देख सकते हैं इस पर्टिकुलर टेक्निक में, ठीक है, दिखता है हमें इस पर्टिकुलर टेक्निक में ये, कि अगर इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की वजह से अगर डीएनए क्लीव्ड हुआ है, ठीक है, तो वो बहुत ही स्मॉल पीसेस में या फिर लॉन्ग पीसेस में क्या हो जाएगा, क्लीव्ड होगा, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर वो क्लीव्ड ना हुआ हो तो, लाइक डीएनए जो है क्लीव ना हुआ हो तो वो क्या रहेगा, वो इस तरह से बल्क में रहेगा, ठीक है। और क्योंकि वो बल्क में रहेगा तो वो क्या होगा, वो सेपरेट नहीं होगा, ठीक है। या फिर वो रन करेगा तो क्या, क्योंकि इट्स अ टेंडेंसी ऑफ द डीएनए, ठीक है, कि क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ ट्रैवल करेगा ही करेगा, ठीक है, वो टेंडेंसी है इसकी। लेकिन क्या है, वो बल्की है, तो वो क्या है, बल्की है तो ज्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिखेगा, उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा दिखेगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो सेपरेट हुए ही नहीं है, क्लीव्ड नहीं हुए हैं, ठीक है। और लेट्स से अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने अपना काम किया है, वो फ्रेगमेंट्स जो लाइक डीएनए जो फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो गए, क्लीव्ड हुए हैं स्मॉल पीसेस में, तो ऑब्वियसली वो बहुत क्या करेंगे, बहुत ही ज्यादा दूर तक ट्रैवल करेंगे ऑन दिस एग्रोस प्लेट, ठीक है। दूसरा, स्मॉल पीसेस में अगर कन्वर्ट हुए हैं तो ज्यादा दूर तक जाएंगे, कन्वर्ट इन द सेंस की क्लीव्ड हुए हैं तो ज्यादा दूर तक ट्रैवल करेंगे। लेकिन अगर हेवियर और लॉन्ग पीसेस में क्लीव्ड हुए हैं तो लॉन्ग पीसेस दैट मीन्स व्हाट, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, ठीक है, दैट मीन्स बेस पेयर सीक्वेंसेस बढ़ जाएगा ना, ठीक है। स्मॉलर फ्रेगमेंट्स मतलब कि ऑब्वियसली द बेस पेयर जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स होंगे वो क्या होंगे, वो कम होंगे, ठीक है, सीक्वेंसेस कम होंगे। और अगर ज्यादा है, लॉन्ग है, तो दैट मीन्स न्यूक्लियोटाइड जो बेस पेयर सीक्वेंसेस होंगे वो क्या होंगे, वो कम होंगे, ज्यादा अगर लॉन्गर है तो ज्यादा होंगी, ठीक है। और ज्यादा होंगे तो मतलब वो हेवियर होंगे, हेवियर होंगे तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेंगे। अगर शॉर्ट होंगे तो बेस पेयर सीक्वेंसेस कम होंगे, अगर कम होंगे तो डेंसिटी कम होगी, ठीक है। और वो क्या करेंगे, वो हेवियर नहीं होंगे, लाइटर होंगे और वो ज्यादा दूर तक ट्रैवल कर पाएंगे, ठीक है। इसका पर्पस क्या हुआ, लाइक हमने क्लीव तो कर लिया अपने डीएनए को, ठीक है। क्लीव करने का मतलब क्या हुआ, लाइक हमने ये सेपरेट कर लिया अपने फ्रेगमेंट्स को, ठीक है। सेपरेट करने का मतलब क्या हुआ, क्यों हमें सेपरेट करना है, सेपरेट हमने इसलिए करना है ताकि हमें हमारा डिजायर्ड जीन, ठीक है, इस पर्टिकुलर में से हम इसको डिजायर्ड जीन को आइसोलेट कर सके, ठीक है। डिजायर्ड जीन दैट मीन्स we know if we want to express some protein and we know the sequence of the protein, we will make a probe of it, ठीक है। प्रोब बनाएंगे, उस पर्टिकुलर प्रोब के पास उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा, उस प्रोब को क्या करेंगे, इसके साथ ट्रीट करा देंगे इस पर्टिकुलर जेल के साथ, और वो प्रोब क्या होगा, जाके पर्टिकुलर जो भी उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है उसके साथ जाके कंबाइन हो जाएगा। इससे हमारा क्या होगा, इससे हमारा डिजायर्ड जीन का सीक्वेंस मिल जाएगा, दैट मीन्स डिजायर्ड जीन मिल जाएगा जिसको हम स्कूप आउट कर लेंगे, ठीक है। ये इसलिए हम क्या कर रहे हैं, फ्रेगमेंट्स को अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी आगे देखते हैं, ठीक है, समझ में आएगा। सो इतना हमने कर लिया, ठीक है। अभी इतना किया तो क्या है यहाँ पे, वन मोर थिंग इज देयर कि जो भी ये जो एग्रोज लाइक व्हाट वी से जो ये प्लेट होती है, ठीक है, वहां पे प्रेजेंट रहते हैं लैडर या फिर कहते हैं उनको मार्कर, ठीक है। प्रेजेंट क्या रहते हैं, लैडर या फिर क्या कहते हैं उनको, मार्कर, ठीक है। सो यहाँ पे, ठीक है, एकदम नीचे लाइक नीचे की तरफ, ठीक है, एकदम जेल पे एकदम लास्ट की तरफ लैडर या फिर मार्कर प्रेजेंट होते हैं,
ठीक है. सो मेक इट मैं एक और यहाँ पे सीक्वेंस बनाती हूँ, ठीक है, और फिर आपको समझाती हूँ. एक और वेल है यहाँ पे, ठीक है. लेट्स से दिस इज वन मोर वेल हियर, द वन मोर वेल इज देयर, ठीक है. और फ्रेगमेंट्स तो एज इट इज होंगे ही होंगे, ठीक है. ठीक है. सो लेट्स से दिस इज द मार्कर, ठीक है. ये इसको रेड से मैं रिप्रेजेंट करूँ, दिस इज द मार्कर, ठीक है. ऐसे दैट मीन्स ये इस तरह का स्केल है, ठीक है. स्केल मेजर करने के लिए, ठीक है, जनरली स्केल क्या करते हैं, मेजर करते हैं द लेंथ, ठीक है. यहाँ पे क्या मेजर करेंगे देखो अभी. तो दीज आर व्हाट, दीज आर द लैडर, ठीक है. लैडर या फिर इनको क्या बोलते हैं, लैडर, या फिर क्या बोलते हैं, मार्कर, ठीक है. ये पर्टिकुलर मार्कर या फिर लैडर बताते हैं कि इफ दीज ऑल लाइक ये जो जितने भी हैं, दीज ऑल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ बेस पेयर्स, ठीक है. जैसे स्केल्स में होती है ना 1 सेंटीमीटर देन 2 सेंटीमीटर्स, ठीक है, जो पर्टिकुलर स्केलिंग्स होती है, तो वैसे यहाँ पे भी स्केलिंग है, ठीक है. और स्केलिंग कैसी होगी, अगर यहाँ वेल्स के पास है, ठीक है, तो बेस पेयर में स्केलिंग्स होती है यहाँ पे, ठीक है. किस में होती है, बेस पेयर में स्केलिंग्स, ठीक है. तो अगर यहाँ पे वेल्स जो है, ठीक है, लाइक एकदम वेल्स के पास है, ठीक है, वेल्स के पास वाले जो सबसे पहले जो स्केल्स हैं, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करेंगी, ये रिप्रेजेंट करेंगी 1000 बेस पेयर्स. कितना, 1000 बेस पेयर. देन कहीं मिड में यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज सॉरी 10,000 बेस पेयर, देन 1000 बेस पेयर, देन कहीं समवेयर हियर प्रेजेंट रिप्रेजेंट करेंगे 500 बेस पेयर. तो दिस इज अ स्केलिंग. ये जो लैडर है वो क्या कर रहा है, वो स्केलिंग दे रहा है कि किस पर्टिकुलर पोजीशन पे लाइक क्या बेस पेयर्स होते हैं, कितने नंबर ऑफ बेस पेयर्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कितने नंबर ऑफ बेस पेयर्स हैं. अगर, ठीक है, अगर पर्टिकुलरली, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे, ठीक है, लाइक यहाँ पे अगर कोई पर्टिकुलर सेगमेंट, ठीक है, ये इस पे जो है पर्टिकुलर कोई सेगमेंट आके ठहर गया यहाँ पे, ठीक है. तो यहाँ पे अगर कोई पर्टिकुलर सेगमेंट्स जो है एकदम लास्ट में जो है आ रहा है, ठीक है, और एक यहाँ आ रहा है लेट्स से, तो यहाँ पे जो आया, ठीक है, ये अगर मैंने सेगमेंट्स को देखा तो ये सेगमेंट कहाँ पे आया है, ये इस पर्टिकुलर स्केल पे आया, दैट मीन्स 500 स्केल पे आया है. इसका मतलब इस पर्टिकुलर सेगमेंट के पास कितने बेस पेयर्स होंगे, एग्जैक्ट 500 बेस पेयर्स होंगे, ठीक है. तो इट्स लाइक अ स्केल, ठीक है. क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है, क्या मेजर कर रहा है, बेस पेयर्स पर्टिकुलर सेगमेंट्स में, ठीक है, जो कि एक्चुअली सेपरेट हो रहे हैं एक दूसरे से, बिकॉज हमने उसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला है, तो फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो गए और अब वो सेपरेट हो रहे हैं ऑन द एग्रोस जेल, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो हम वो इसमें क्या, ये जो फ्रेगमेंट्स है ये, इसमें हमें क्या पता चलेगा, बिकॉज ऑफ द लैडर या फिर बिकॉज ऑफ द मार्कर हमें पता चलेंगे बेस पेयर्स स्पेसिफिक फ्रेगमेंट इज हैविंग, ठीक है. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द लैडर एंड द मार्कर, ठीक है. नाउ जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, फाइनली जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, दैट इज व्हाट, दैट इज द आइसोलेशन ऑफ द डीएनए, ठीक है. हम डीएनए को फाइनली आइसोलेट करेंगे, जिससे हम बोलते हैं इल्यूशन, ठीक है. सो द नेक्स्ट प्रोसेस इज ऑफ इल्यूशन. ओके, सो जो नेक्स्ट प्रोसेस है, दैट इज द विजुअलाइजेशन ऑफ द डीएनए, ठीक है. व्हाट द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, आई एम राइटिंग इट हियर ओनली, विजुअलाइजेशन ऑफ डीएनए, ठीक है, या फिर कह लेते हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है, डीएनए. सो विजुअलाइजेशन या फिर आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इल्यूशन मैथड. व्हाट, इल्यूशन मैथड, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, इल्यूशन मैथड. सो बेसिकली इस पर्टिकुलर मैथड में होता क्या है कि वी लाइक हमें क्या मिला, हमें वो जेल मिला, एंड द जेल्स हैव व्हाट, these fragments, the DNA fragments on different scales, correct. Now we'll
take that particular gel, ठीक है, we will hold it properly because remember it's a gel, ठीक है, it's very delicate, it's a gel, it's very delicate, so we have to handle it very carefully, ठीक है. So we'll take the plate, ठीक है, and we'll expose that gel plate to what, first we will treat it with the ethidium bromide, ठीक है. So the first technique is what, the very first is what we treat the gel plate with ETBR, ठीक है, ETBR, ठीक है, ETBR, it is ethidium bromide, ठीक है, ethidium bromide, ठीक है. So we treat the gel plate with ethidium bromide, ठीक है, and expose it to what, UV rays, ठीक है. तो यहाँ पे दो चीजें जो है ध्यान में रखने वाली है, ठीक है. दैट इज व्हाट, पहले तो ट्रीट कराना ETBR से, इथिडियम ब्रोमाइड से, ठीक है. और जब अगर इथिडियम ब्रोमाइड से हम ट्रीट करा रहे हैं तो हमको क्या करना है, एक्सपोज करना है यूवी रेज पे, ठीक है. तो अगर हम यूवी रेज पे एक्सपोज करेंगे तो डीएनए जो फ्रैगमेंट्स हैं, डीएनए बैंड्स, ठीक है, will appear orange in color, will appear what, orange in color, ठीक है. अगेन दिस वी हैव टू रिमेम्बर, किस कलर में हमें दिखेगा डीएनए बैंड्स, ऑरेंज कलर में, ठीक है. द नेक्स्ट एक दूसरा टेक्निक, ठीक है, विजुअलाइजेशन का ही दूसरा टेक्निक. सो दूसरा टेक्निक क्या है, दैट इज यहाँ, ठीक है, इसका जो है दूसरा टेक्निक, विजुअलाइजेशन का जो दूसरा टेक्निक है, दैट इज वी विल ट्रीट द जेल प्लेट, ठीक है, सेम वही, ट्रीट द जेल प्लेट with radio labeled probe, what, with radio labeled what, probe, क्या, probe, ठीक है. Things to remember, that is we have to treat it with the radio labeled probe, ठीक है. Now what is this particular probe is, this probe is, that is artificially developed, this is artificially developed DNA, in lab. This is what, this is the artificially developed DNA in lab, ठीक है. So this is what, this is the artificially developed DNA in lab. That means this particular probe will be having the sequence, the complementary sequence of our desired gene, ठीक है. That means पढ़ा है ना आपने इससे पहले सेंट्रल डोग्मा में, और वी कैन से ट्रांसक्रिप्शन में, ठीक है. द प्रोटीन हैज टू सिंथेसाइज, बट द सीक्वेंसेस फॉर द प्रोटीन प्रेजेंट वेयर ऑन द डीएनए, ठीक है. तो क्या करते हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस डीएनए से लाते हैं, करेक्ट ना. सो सिस्ट्रॉन्स, द सिस्ट्रॉन्स आर एक्चुअली प्रेजेंट वेयर, डीएनए में प्रेजेंट है, ठीक है, डीएनए प्रेजेंट वेयर, न्यूक्लियस में, करेक्ट ना, ये हमने पढ़ा है. तो हम क्या कर रहे हैं, हमें जो पर्टिकुलर प्रोटीन सिंथेसाइज करना है, करेक्ट ना, प्रोटीन वी हैव टू सिंथेसाइज नाउ, क्योंकि उसको हमें प्रोटीन सिंथेसाइज करना है, ठीक है. तो हम ये आर्टिफिशियली बना रहे हैं, तो यहाँ पे बीच में जो है मैसेंजर का कोई काम नहीं है, ठीक है, वो याद रखो, ठीक है. अब उस पर कंफ्यूज मत हो जाना कि अरे मैम आपने एग्जांपल दे दिया ट्रांसक्रिप्शन का, तो वहाँ पे तो एमआरएनए था, तो उसके पास तो कॉम्प्लीमेंट्री था, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के पास, नहीं, वो चीजें हम नहीं लाएंगे बीच में, ठीक है ना. यहाँ पे the probe is made artificially, that means the probe will be having the sequence, the complementary sequence of our desired gene. We know that we have to express this particular protein. Now that particular protein will be having some sequences, ठीक है. अब उस सीक्वेंस को सिंथेसाइज करने, उस पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है, सेगमेंट ऑफ डीएनए है, वो तो यहीं प्रेजेंट रहेगा ना, इसी किसी एक में प्रेजेंट रहेगा. उस प्रोटीन को एक्सप्रेस करने के लिए या फिर उस प्रोटीन को कोड करने के लिए जो सीक्वेंस है वो तो यही कहीं है ना, इसी किसी फ्रेगमेंट में है,
ढूंढेंगे कैसे? ढूंढेंगे हम विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ प्रोब। तो उसमें हम क्या करेंगे? विल मेक अ आर्टिफिशियल सीक्वेंस डीएनए इन लैबोरेटरी, ठीक है। और सीक्वेंसेस हम कैसे फिल करेंगे? क्योंकि हमें प्रोटीन जो बनाना है, उस प्रोटीन का पता है हमें क्या लाइक सीक्वेंस है, ठीक है। तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हम डालेंगे किसमें? प्रोब में, ठीक है। सो उसको कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, ठीक है, ऐड करके हम आर्टिफिशियल डीएनए बनाएंगे इन द लैबोरेटरी, ठीक है। और उसको हम क्या कर देंगे? रेडियो लेबल्ड कर देंगे, ठीक है। सो फर्स्ट विल ट्रीट द जेल प्लेट विद द रेडियो लेबल्ड प्रोब, ठीक है। नाउ दिस पर्टिकुलर प्रोब क्या करेगा? ठीक है, दिस प्रोब विल गो एंड बाइंड, ठीक है। विल गो तो हम ऐसे लिख देते हैं, लाइक जनरल लैंग्वेज में मैं लिख रही हूँ, ठीक है। तो विल गोज टू कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, ठीक है, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री सेगमेंट, या फिर पीस ऑफ डीएनए, ठीक है। विल गोज टू कॉम्प्लीमेंट्री ठीक है, विल गो टू, ठीक है, विल गोज टू कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस या फिर पीस ऑफ डीएनए ऑन जेल प्लेट, ठीक है। इससे भी अच्छा वर्ड अभी मैं लिख देती हूँ, देखिए बड़ा अटपटा सा सेंटेंस लग रहा है। दिस प्रोब विल बाइंड टू, this probe will bind to what? Complementary piece of DNA on the gel plate, ठीक है। Next, now we'll expose, now we will expose the gel plate, ठीक है, to X-rays, ठीक है, what? टू एक्सरेज। अब हमने क्या याद यहाँ पे रखना है? हमने एक्सपोज कहाँ करना है जेल प्लेट को? एक्सरेज पे, ठीक है। वहां पे यूवी रेज पे एक्सपोज किया था, यहाँ पे क्या करना है? हमने एक्सरेज पे एक्सपोज करना है, ठीक है। और अगर हम एक्सप्रेस पे एक्सपोज करेंगे तो द बैंड्स, ठीक है, द बैंड, द डीएनए बैंड, ठीक है, टू विच प्रोब इज अटैच्ड, ठीक है, टू विच प्रोब इज attached will appear what? ग्रे, ठीक है, या फिर कहते हैं ग्रेइश ब्लैक, ठीक है, ग्रे और ब्लैक कलर, ठीक है। सो ये चीजें याद रखनी है। तो हमने क्या ढूंढा? हमने हमारा सेगमेंट ऑफ डीएनए फाइंड कर लिया, जो कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, डिजायर्ड जीन है, ठीक है। यही तो हम पढ़ रहे हैं ना, स्टार्टिंग से हम यही पढ़ते आए हैं। हमने आइसोलेट करना है जीन को, डीएनए को आइसोलेट करना है, डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट को, एंड देन फिर उसको इंसर्ट करना है। तो आइसोलेट करना, कैसे आइसोलेट करना है? ऐसे, इस तरह से आइसोलेट करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम अपने डिजायर्ड सीक्वेंस वाले सेगमेंट को आइसोलेट करेंगे, एंड देन फिर क्या करेंगे? फिर उसको प्लास्मिड से इनकॉर्पोरेट करा देंगे, ठीक है। प्लास्मिड को अगेन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे स्पेसिफिक सीक्वेंस पे, और वहां पे लाइगेज के थ्रू इनकॉर्पोरेट कराएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन जो है, ठीक है, लाइक फर्स्ट जो प्रॉब्लम थी तो सॉल्व होगी कि आइसोलेट। मैंने बोला था एकदम स्टार्टिंग, एकदम स्टार्ट कर, फर्स्ट जो इस पर्टिकुलर चैप्टर का फर्स्ट वीडियोस में मैंने बोला था कि आइसोलेशन, इंसर्शन, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। दो में भी हो सकता है आपकी बुक में मेंशन ना हो ये सारे प्रोसेस, बट स्टिल, ठीक है, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन ही देख लो, ठीक है। या फिर जिनको नहीं भी चाहिए वो स्किप भी कर सकते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। मैं पहले ओहो, तब तो मुझे एकदम स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था, ठीक है। जिसको स्ट्रिक्टली बुक से फॉलो करना है तो वो स्किप कर दे, करेक्ट ना। बट कोई नहीं, अब देख लिया है तो कोई बात नहीं, नॉलेज ही मिली है आपको, ठीक है, कोई हार्म तो है नहीं उसमें। सो दिस इज हाउ वी व्हाट, this is how we isolate our desired gene of interest, ठीक है। so this is the gel electrophoresis process, ठीक है। now one more thing, एक छोटी सी चीज है, ठीक है, that is
लाइक इफ वी सेपरेट डीएनए, ठीक है, अगर हम सेपरेट करते हैं किसको, डीएनए को, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, if we separate DNA with the help of electrophoresis, then the process, ठीक है, then the technique is called, अगर हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से, ठीक है, if we separate, ठीक है, so the three things are there, ठीक है, with the help of electrophoresis if we separate DNA, ठीक है, with the help of what, with the help of gel electrophoresis, then the process called as, ठीक है, then process called as, then the process is called as southern blotting, southern blotting. If we separate RNA, ठीक है, if we separate RNA with the help of this, then the process is called as what, then the process is called as northern blotting. It's called as northern blotting. And if we separate protein, okay, then the process will be called as what, it will called as western blotting. Okay, so this is what some of the information just, okay, which is actually useful for the NEET purpose. Separation of the DNA with the help of gel electrophoresis, process called as southern blotting. Then separation of the RNA called as what, it's called as northern blotting. Then the separation of the protein is called as what, it's called as western blotting. Okay, so these are the some of the terms which is actually useful. Okay, now do not think कि ये जो particular जो naming है that is all on behalf of the directions. No, these namings are on behalf of the name of the scientist. Yes, you heard it right. On the name of the scientist, the name is given. Next. So next is one of the question, ठीक है, जो which was asked in the like previous year of the NEET, ठीक है, और जिन्हें लाइक सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक वाला जो मैटर है वो चाहिए, ठीक है, वो लाइक अभी यहाँ से जो है स्किप कर सकते हैं वीडियो, ठीक है, क्योंकि लास्ट पार्ट है वीडियो का एंड इसमें आई एम टेलिंग अबाउट द क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन द नीट, ठीक है, सो ऑब्वियसली जो सिर्फ और सिर्फ स्टेट बोर्ड से हैं, ठीक है, वो स्किप कर सकते हैं. सो द क्वेश्चन वाज कि हाउ मच परसेंट ऑफ एग्रोज, ठीक है, द क्वेश्चन आई एम राइटिंग, हाउ मच परसेंट of egg rolls, ठीक है, egg rolls used, ठीक है, how much percent of egg rolls used like will be used, ठीक है, will be used in isolating, will be used in isolating, ठीक है, in isolating first, एक तो in isolating genomic DNA or in isolating genomic DNA, genomic DNA and plasmid DNA. What? Plasmid DNA, ठीक है, genomic DNA and the plasmid DNA. So इस particular case में, ठीक है, genomic DNA से क्या मतलब है, genomic DNA से मतलब है human genome, ठीक है, example, ठीक है, that is human genome, ठीक है. So the question, ठीक है, this was the question, how much percent egg rolls will be used in isolating what, in isolating genomic DNA या फिर और plasmid DNA, ठीक है. So always remember जो genomic DNA होता है वो क्या होता है, it's very long, ठीक है, because we are talking about human genome, तो obviously वो बहुत ही क्या होगा, वो बहुत ही large होगा, ठीक है, will be large in size, ठीक है, और this will be what, this will be large in size obviously, ठीक है, and this will be what, this will be small in size because obviously we are talking about what, plasmid DNA, ठीक है, तो small in size होगा, ठीक है, और ये क्या होगा, large in size होगा, ठीक है. So option थे the how much percent of like egg rolls ना, ठीक है, तो options were there, ठीक है, the options were like 1%, ठीक है, 2% and then 3, ठीक है, and so on, 1%, 2%, 3%, इस तरह के ऑप्शंस है, ठीक है. तो ये जो 1% ऑफ एग्रोज है ना, 1% मतलब कि 1 ग्राम, ठीक है, इन 100 ml
ऑफ डिस्टिल वाटर, ठीक है, दैट मेक्स द 1%, ठीक है। सो ये क्या करेगा बेसिकली, 1% जो एग्रोज है वो कुछ विल बी हैविंग दिस ह्यूज पोर्स साइज, ठीक है, इस तरह के पोर, लाइक वो जब जेल प्लेट पे हम उसको पोर करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, इतना पोर साइज होगा उसका, द पोर साइज, ठीक है, इज एक्चुअली लार्ज इन केस ऑफ, और इन केस ऑफ 1% ऑफ एग्रोज, ठीक है। ऑन द अदर हैंड हम जब बात करते हैं किसकी, 2% एग्रोज की, ठीक है, तो 2% एग्रोज मतलब कि 2 ग्राम ऑफ एग्रोज इन 100 ml, ठीक है, तो वो क्या करेगा थोड़ा, ठीक है, इससे थोड़ा सा कम जो है इसका पोर साइज होगा, इतना क्रिएट करेगा वो, ठीक है, इतना पोर साइज होगा उसका, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द परसेंट इज व्हाट 3%, देन व्हाट, देन वो और भी इस तरह से दिस पर्टिकुलर 3% एग्रोज विल बी हैविंग pore size this much size of the pores, ठीक है, तो कैन यू सी, यस, इस तरह के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। सो इसलिए बोला कि जो डीएनए है, ठीक है, डीएनए आइसोलेशन वाइसोलेशन ये सारे क्या, ये यूं ही टेक्निक्स नहीं है, ठीक है, बहुत ही मेहनत है इसमें। सो दिस परसेंट जो है, ठीक है, वो इस तरह, जो 3% है वो इस तरह की पोर साइज क्रिएट करते हैं, दैट मीन्स जो यहाँ पे साइज है, ठीक है, पोर्स का वो सबसे कम है और यहाँ पे 1% में सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो अगर जिनोमिक डीएनए को हम 3% ऑफ एग्रोज पे रन कराएंगे, ठीक है, हम क्या करा रहे हैं, हम रन करा रहे हैं, तो वो क्या होगा बेसिकली, क्योंकि ह्यूमन जीनोम इज लार्ज ना, इट्स ह्यूज, तो वो क्या हो जाएगा, वो तो स्टक हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, स्टक हो जाएगा, ठीक है, स्टक हो जाएगा कौन, ह्यूमन जीनोम, ठीक है, वो स्टक हो जाएगा एंड इट विल नॉट रन, ठीक है, वो रन नहीं कर पाएगा ऑन दिस एग्रोज। ऑन द अदर हैंड अगर हम 1% ऑफ एग्रोज लेंगे तो द ह्यूमन जीनोम इज दिस बिग, ठीक है, बहुत बिग है, ठीक है, बट वो क्या होगा, इट विल नॉट स्टक, ठीक है, इट विल नॉट स्टक एंड इट विल इजिली रन ऑन 1% ऑफ एग्रोज, ठीक है, वो क्या करेगा, बहुत ही इजिली, ठीक है, क्या कर पाएगा, रन कर पाएगा, ठीक है, ऑन दिस एग्रोज, ठीक है, रन कराना है हमने यहाँ पे, ठीक है, किसको, फ्रेगमेंट्स को हमने रन कराना है, डीएनए को बेसिकली रन कराना है, किस पे, एग्रोज पे रन कराना है, तो इजिली रन कर पाएगा अगर पोर साइज दिस मच हो, बिकॉज हम ह्यूमन, लाइक हम जिनोमिक डीएनए ले रहे हैं, दैट मीन्स ह्यूमन जीनोम ले रहे हैं, वो उसका साइज, ठीक है, ज्यादा है, ठीक है, अगर हम प्लाज्मिड डीएनए ले रहे हैं उसका साइज बहुत स्मॉल है, तो वो इस पे रन कर जाएगा आराम से 3% एग्रोज पे, बिकॉज द प्लाज्मिड साइज इज वेरी small and the pore size of 3% egg grows used is very small, ठीक है, small, क्या बोल रही हूँ मैं, so small, so that so there is no chance कि जो प्लाज्मिड डीएनए है वो स्टक हो जाए यहाँ पे और रन ना कर पाए, ठीक है, और यहाँ पे बिल्कुल चांसेस है कि जो जिनोमिक डीएनए वो इजिली रन करे विदाउट स्टकिंग, so the correct answer for the genomic DNA will be 1% and for the plasmid DNA will be what, 3%, ठीक है। So this is all about what? This is all about electrophoresis, gel electrophoresis, ठीक है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में विल टॉक अबाउट ऑब्वियसली द about the next device obviously and that device will be the PCR. So तब तक के लिए take care and bye bye.